नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज एनआर के भी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Baruyako Jambo to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. Is the as Pradeep ji says what? When you click the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. So Pradeep ji, there were two Russian oil tankers which were heading towards East Asia. They've just been rerouted towards India. Yes. दोनों के दोनों जो रशियन ऑयल टैंकर हैं इस वक्त इंडिया की तरफ आ रहे हैं. और दूसरी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो सुनने में आई है वो ये है कि इजराइल ने इंडिया का भी पक्ष रखा है वाइट हाउस में और ये कहा है कि भैया वो तो इजराइल से खरीदेंगे ही, ऑयल इजराइल से खरीदेंगे नहीं तो क्या और कहाँ जाएंगे? वील हैव टू रशिया से खरीदेंगे नहीं तो और कहाँ जाएंगे? बिकॉज द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आर ब्लॉक्ड. स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड which controls about 20 to 30% of the oil supply of the world. There's no other way out except for India to buy Russian oil. So that's it. So as the Indians have explained, sanctions or no sanctions, we're going to buy Russian oil. And it's a war. I mean, you started the war, and when the war is on, how do you expect things to work out? And Yeah, especially you can't. the entire Middle East in flames. Ji. Every country out there, UAE, which we call the Friends of India, are in trouble. Modi ji has talked to 8 Gulf leaders in the last 48 hours. That's right. 8 Gulf leaders से मोदी साहब ने बात किया last 48 hours में और we condemn the strikes on them. The Iranian attacks on these 8 Gulf states, Modi साहब has condemned it. और दूसरी चीज क्या है कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि मोदी जी ने बात करी है बेंजामिन नेतन्याहू से भी और उनको ये बोला है कि भैया देखो अब ये लड़ाई बड़ी बंद कर दो, बहुत देर हो गई है, बहुत हो गया, गुड मॉर्निंग कर लीजिए. But anyway, the footage that you are seeing is of the Norwegian, is of the Finnish president. The gentleman from Finland, Mr. Stubbs. Lots and lots of countries from all over the world coming over to India to sign a free trade agreement with India. And the other big story, of course, is that Bihar will finally get a BJP chief minister. Mr. Nitish Kumar is going to go to the Rajya Sabha. And the way the Canadian Prime Minister praised Prime Minister Modi, yes, he said 25 साल में जिस व्यक्ति एक भी छुट्टी न लिया हो, yes, last 25 years Prime Minister Modi has not even taken a day off, is an inspiration to the whole world. We'll show you absolute that. Inspiration to the whole world. That's what the Canadian Prime Minister said. Carney. Mark Carney, he said that, and we'll show it to you, of course, very, very shortly. But in the meantime, let's go straight across to our guests. We've got a wonderful, wonderful panel of guests tonight. Let's go straight across to them and let's see what they have to say with regard to the situation at the moment. Sushil Vyas ji, namaskar. Sushil Vyas ji, namaskar. जरा unmute करें हमने फोन. Sushil Vyas ji. नमस्कार सर. नमस्कार, नमस्कार. Dr. Viral Malik, how are you, sir? नमस्कार. जी नमस्कार. एकदम बढ़िया. अब डॉक्टर विरल मलिक तो बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का. नीतीश कुमार जी जाएंगे राज्यसभा में. आपको आवाज आ रही है ना सर? राजीव जी आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है. बहुत कम आ रही है आवाज. आई थॉट सो. ये आपने माइक्रोफोन जो चेंज किया ना उसकी वजह से आवाज जो है वो बहुत कम आ रही है भाई. जरा प्लीज डू समथिंग अबाउट द वॉइस. पीपल कांट हियर मी. इवन आई कांट हियर माई सेल्फ. सर अभी आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा आपकी उस साइड से कम आवाज आ रही है इस साइड. कैन वी डू समथिंग अबाउट द वॉइस प्लीज? पीसीआर भाई आवाज के बारे में कुछ करें. मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है लोगों तक. क्यों आप मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं भाई? आप तो कांग्रेसी तो नहीं है ना? आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम आ रही है इस साइड से. आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है. नहीं इस साइड से बढ़ा हुआ है बिल्कुल. उस साइड से बढ़ा हुआ है. परफेक्ट है. आप लोगों ने कम करी है यहां से. कैन यू डू समथिंग अबाउट द
वॉल्यूम प्लीज प्रदीप जी, why don't you बिल्कुल ask बिल्कुल maybe आ रही है बजाज maybe there's a Aviral problem Malik with ji, my can you hear me? Dr. Malik Sahab, can you hear me? आप दोनों की आवाज क्लियर आ रही है मुझे अच्छी तरह से, इट्स नॉर्मल वे। अविरल मलिक जी, क्या कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? अविरल मलिक जी, जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, राहुल आपकी अभी गांधी आवाज आ रही जी, है, थोड़ा ये अच्छा आ रही है, सोनिया अभी गांधी आ रही जी, है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आलोचना जो मौन व्रत रखे हैं मोदी साहब, द असैसिनेशन ऑफ खोमेनी, और कुछ कल ही आइरिस देना जो इंडियन ओशन, अपने इंडियन टेरिटरी के बाहर वो शिप थे, फ्रिगेट थे, उनको उड़ा दिया गया यूएस सबमरीन के माध्यम से। ईरान का कहना है कि इट वाज अ गेस्ट ऑफ इंडिया, द फ्रिगेट वाज अ गेस्ट ऑफ इंडिया। मोदी जी उस पर भी मौन है, और कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब पूछ रहे हैं आपका स्टैंड क्या है? मलिक साहब, क्या स्टैंड है? देखिए, आपका भी मैं आपके सवाल का भी उत्तर देता हूं, उसके साथ साथ राजीव जी का भी जो सवाल मुझे सुनाई दिया था नीतीश जी के विषय पे, राजीव जी ने जी सवाल जी किया जी था। thank देखिए, you. नीतीश जी का जहां तक सवाल है, एक तरीके से उनके द्वारा एक्स के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। एक्स पे उनके आप जो पोस्ट आया है उन्होंने बिल्कुल इसमें स्पष्ट किया है, और मैं समझता हूं इस पे हमारे द्वारा कुछ स्पष्ट किया जाए ये किसी रूप में आवश्यक इसलिए नहीं, क्योंकि आदरणीय नीतीश जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया, वो अनुभवी नेता है और उसके साथ वरिष्ठ नेता है। और जहां तक विषय एक तरीके से राज्यसभा में उनके जाने का सवाल है, तो निश्चित रूप से राज्यसभा में अच्छी एक तरीके से डिबेट्स होंगी, अच्छी चर्चा होगी, और जनता के हितों के मुद्दे पे और अधिक चर्चा होगी, किसानों के मुद्दों को और अधिक उनके द्वारा मजबूती के संग वहां रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से अच्छा एक तरीके से विषय है, ये शुभ संकेत है देश की राज्यसभा के लिए, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और वो इंडियन पार्लियामेंट के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये निश्चित रूप से एक आमूलचूल परिवर्तन साबित होगा, इसमें कोई मैं समझता हूं, मुझे डाउट नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से राहुल जी का, कांग्रेस पार्टी का, या फिर एक तरीके से जो आपके द्वारा सवाल किया गया स्टैंड का, हमारा स्टैंड क्या, हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। इंडिया का जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है, हम शांति, अमन, चैन के पक्षधर थे, हैं और सदैव रहेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है ह्यूमन राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, मानव अधिकारों को सुरक्षित संरक्षित कैसे किया जाए, मानव अधिकारों का संरक्षण कैसे हो, इसकी हम चिंता करते रहे। और जहां तक विषय एक तरीके से वैश्विक पटल पे, तो आज भारत मजबूती के साथ उभर रहा है विश्वगुरु के रूप में, और उसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व वाला है मजबूत भारत है, नया भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो निश्चित रूप से जो आज की भारत की जो विदेश नीति है, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी है, वो पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। और हमारे विदेश मंत्री जी हो, विदेश सचिव जी हो, आज का विदेश मंत्रालय हो, पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है, हर विषय पे स्टैंड लेने के लिए, जवाब देने के लिए। इसमें मैं समझता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, और देश के हितों को सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल था, है और सदैव रहेगा। आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन, राहुल जी, सोनिया गांधी जी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, असैसिनेशन ऑफ खोमेनी, उस पे साइलेंस क्यों है? और कल जो आइरिस देना ईरानियन शिप जो हमारा ही एक एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए आया था, वो उनको हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर शॉट डाउन किया, श्रीलंकन कोस्ट के आसपास, तो उस पर चुप्पी क्यों, जब ईरान खुद कह रहे कि ये जो फ्रिगेट थे इंडिया के कहने पर आया था, इंडिया का गेस्ट था? मलिक साहब, देखिए, उस विषय पे, जहां तक हत्या के विषय पे, दुखद मृत्यु के विषय पे जहां तक सवाल है, तो बिल्कुल स्पष्ट है, इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हर विषय पे एक ही स्टैंड रहता है, इसमें बार बार कुछ कहा जाए मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है हमारा मानना। ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, किलिंग्स नहीं होनी चाहिए, इनोसेंट लोग नहीं मारे जाने चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात करी जाए एक तरीके शांति की, तो शांति की पहल होनी चाहिए। हर डिस्प्यूट को, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को वार्ता के माध्यम से, संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए, सेटल किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ किसी प्रकार से अनावश्यक युद्ध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा विवाद, किसी रूप में टेंशन वैश्विक पटल पर उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये मानवता के लिए दुखद है, मानवता के लिए खतरा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से मानवता को संरक्षित करने का सवाल है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मानवता को सुरक्षित संरक्षित करना, मानव अधिकारों को, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की पहल करना, ये हमारे मुख्य मुद्दे कल भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। अभी आपको आवाज आ रही है सर मेरी? डॉक्टर मलिक, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अभी स्पष्ट आवाज आ रही है। अभी आ रही है, थैंक यू सो मच। एंड आई डोंट नो व्हाई वी आर कैरिंग मिस्टर स्टब्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो जो नॉर्वे के जो प्रेसिडेंट है भाई, बहुत दिखा दिया ना उनको अभी। चलिए चलिए आगे बढ़िए तरफ, थैंक यू सो मच। वो मोदी जी अभी मदुरई में गए थे, मुरुगन की उन्होंने पूजा करी, वहां पे सुब्रमण्य स्वामी टेम्पल पर थे, वो सब दिखाइए, थैंक यू सो मच। सो ये बताएं सर, जहां तक के आज जो हमारे फॉरेन सचिव है मिस्री साहब,
वो गए आज इरानियन एम्बेसी और वहां पर उन्होंने शोक व्यक्त किया, जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, आयतुल्ला खामेनी की मौत पर उन्होंने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस की यह डिमांड थी कि आपने तो शोक भी व्यक्त नहीं किया। आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या है कि जो 2 रशियन ऑयल टैंकर जो ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे, अब वो मुड़ करके वापस आ रहे हैं भारत की तरफ। यह कहा गया है कि वहां पर बात हो चुकी है, अमेरिका को भी समझाया जा चुका है कि भैया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो हैं वहां से कोई ऑयल तेल आ नहीं रहा है, यानी कतर से जो हम एलएनजी मंगाते थे वो उन्होंने अपना प्लांट ही बंद कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने आरामको की जो रिफाइनरी है वो भी बंद कर दी है। तो तेल आएगा तो कहां से आएगा? तेल सिर्फ रशिया से आ सकता है। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो सर आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द मोदी गवर्नमेंट। सर बताएं डॉक्टर मलिक। जी देखिए, जहां तक ये इस सवाल का विषय है तो बिल्कुल ये निश्चित रूप से जो आपने विषय रखा है ये चिंता योग्य विषय है। उसके साथ साथ जो बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्टता पूर्वक सामने आ रहा है। अगर बात कर ली जाए मजबूती की, देश की मजबूती की, राष्ट्र की मजबूती की, हमारे मोदी जी के नेतृत्व की मजबूती की, सरकार की मजबूती की, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। और ऑयल की अगर बात कर जाए, और उसके साथ साथ आज बहुत से ये भी मुद्दे दिन भर सोशल मीडिया पे कुछ लोग ट्रेंड कराते रहे कि भाई आम जनता की जेब पे बोझ पड़ेगा, भार पड़ेगा, मध्यम वर्गीय के जेब पे भार पड़ेगा। तो मैं समझता हूं ऐसे किसी प्रकार से भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं की जानी चाहिए देश में। और उसके साथ साथ जहां तक विषय मध्यम वर्गीय की चिंता करने का, तो निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी में शामिल है कि मध्यम वर्गीय के जेब पे कोई असर ना पड़े, चाहे तेल का विषय हो या फिर एक तरीके से महंगाई का विषय हो, तो किसी प्रकार से मध्यम वर्गीय लोगों का नुकसान ना हो, ये हमारा प्रायोरिटी में शामिल है। जहां तक विषय एक तरीके से ईरान का और वैश्विक पटल का जहां तक विषय है, और उसके साथ साथ जहां तक अगर बात कर ली जाए रशिया की भी, तो निश्चित रूप से रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ अच्छे संबंध है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी जी के मित्र हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब अच्छे मित्र हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और वैश्विक पटल पे भारत मजबूती के साथ उभर रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश मजबूती के साथ ग्रोथ कर रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। मैं समझता हूँ ये क्लियर कट नजर आ रहा है। जी अब सुशील व्यास जी, तो आखिरकार शरद पवार साहब जा ही रहे हैं, मतलब ही इज गोइंग टू द राज्यसभा, लुक्स लाइक इट। ज्योति वाघमारे जी को चुना गया राज्यसभा में जाने के लिए। सुनने में यह आ रहा था कि शाइना एनसी जी जो थी वो या तो खुद दिलचस्पी दिखा रही थी या बहुत लोग उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि उनको भेजा जाए, तो वो तो बड़ी डिसअपॉइंटेड होंगी सर, सुशील व्यास साहब। कौन क्या कर रहा था पता नहीं, लेकिन अब अंतोगत्वा हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे ने एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता जो एक संघर्ष रही थी, पार्टी के लिए हमेशा जुझारूपन से लड़ रही थी, पिछड़े वर्ग से आती है, एक साधारण परिवार की कार्य से आते कार्यकर्ता है, बड़ी मेहनत और लगन के साथ पार्टी के लिए काम कर रही थी। हमें अभिमान है कि हमारे नेता ने एक हमारे ऐसे साथी को जो एक प्रवक्ता के रूप में भी कार्यरत है, उसको पार्टी के सांसद के रूप में चुना है। और ये हम लोगों में लगता है कि एक प्रेरणा देने का काम है कि जो लगन से, मेहनत से, निष्ठा के साथ पार्टी से जुड़ा रहेगा, पार्टी में कार्यरत रहेगा, कभी न कभी उसको मौका आगे बढ़ने का मिलेगा। वंडरफुल वंडरफुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी की बहुत तारीफ हो रही है, especially now. I don't know why this is happening right now, but it is happening. The whole social media is full of only one thing, कि एक ऑटो चलाने वाला मुख्यमंत्री बना महाराष्ट्र का और अभी उप मुख्यमंत्री है और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। एकनाथ शिंदे जी के बारे में ये बातचीत चल रही है हर जगह पे। Why it is happening right now? I don't know. प्रदीप जी प्लीज। एडवोकेट सुशील व्यास जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस प्रकार से इंटरनेशनल अफेयर्स में जैसे 8 गल्फ लीडर से 48 आवर्स के अंदर उन्होंने बात किया, उन्होंने कंडेम किया जो अटैक 8 गल्फ लीडर्स स्टेट्स पे हो गया था। आगे उन्होंने कहा कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट रिजॉल्व इश्यूज, सो यू नीड टू हैव पीस टॉक। अब मोदी जी इस प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं सब लीडर से, टॉकिंग फॉर पीस, उधर इवैक्यूएशन प्रोसीजर भी चल रहा है, लोग वहां से आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी खुद 2 एयरलिफ्ट वहां से किए। तो हाउ डू यू सी द कांग्रेस क्रिटिसिज्म? कांग्रेस का क्रिटिसिज्म कि आपका वन साइडेड है, ईरान से आपने बेवफाई किया है, ईरान को आपने निगलेक्ट कर दिया है, खोमेनी के डेथ पे आपने कुछ नहीं, इनफैक्ट सोनिया गांधी ने खुद आर्टिकल लिखा इसके ऊपर। हाउ डू यू
you see the Congress criticism? व्यास जी. नामबिहार जी, आपकी बाकी बातों का जवाब मैं दूंगा, लेकिन जो अंतिम वाक्य आपने कहा, सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा, Yes. या उनके बिहार पे किसी ने लिखा और उसके नाम से उनके नाम से प्रसारित और प्रकाशित होता है, वो है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब मोदी जी के बारे में जो आपने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो स्थितियां इस समय बनी हुई है, एक विश्व स्तरीय नेता की जो जिम्मेदारी होती है वो मोदी जी निभा रहे हैं। जैसे जैसे मौका मिल रहा है वहां से प्रभावित जो देश हैं, वहां के देश के प्रमुख नेताओं से वो बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था स्थापित हो, और वहां पर फंसे हमारे बड़ी संख्या में भारतीय जो हैं उनको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उनको किस तरह से वहां पर वहां की सरकार के माध्यम से कोई तकलीफ न हो ये देखा जाए, और हो सके तो उनको इवैक्यूएट करके फिर से भारत लाया जाए, जो आपने बताया हमारे नेता के बारे में। देखिए, जिम्मेदार नेता का यही काम होता है। बजाज जी, आप जो कह रहे थे वो लोकप्रिय है, वो इसीलिए लोकप्रिय थे एकनाथ राव शिंदे। ये जब तमाम नेता राजनीति में व्यस्त है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तब उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 2 चार्टर्ड प्लेन यहाँ से भेजी, जो महाराष्ट्र के हमारे जो लोग गल्फ के उन कंट्रीज में फंसे हुए थे उनको इवैक्यूएट करा के 2 चार्टर्ड फ्लाइट से ला करके एक जो अपना योगदान हो सकता है इस तरह के कामों में, उन्होंने करने का पहल की है, और इसीलिए शायद पहले भी कर चुके हैं सर, पहले भी कर चुके हैं। आपको याद कश्मीर के समय में भी होगा, किए, पहलगाम हमले में भी किए थे। जी बिल्कुल, उसी पे आ रहा था मैं। पहलगाम हमला जब हुआ था तो महाराष्ट्र के जितने भी पर्यटक थे उनको वापस लाने में सबसे अग्रसर रहे एकनाथ शिंदे साहब। वंडरफुल ना व्यास जी, ये एक चीज है कि इंटरनेशनल यानी यूएई से, दुबई से लोगों को एकनाथ शिंदे जी ने यहाँ पर लाया। इससे पहले ऐसे कोई भी एग्जांपल नहीं है कि कोई स्टेट के डिप्टी सीएम वहां के एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट करके वहां से लोगों को लेके आए। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज कॉस्ट सॉर्ट ऑफ पैनिक अमंग द पॉलिटिकल जो लीडर्स है कि ये कैसे हुआ, और कैसे सेंटर और स्टेट, अगर स्टेट खुद ही ऐसे सब करने लगा तो हाउ डू यू सी दैट? क्या नेशनल गुड के लिए, लोगों के हित के लिए अगर कोई पहल होना चाहिए तो इट हैज टू बी हैपन। व्यास जी, नहीं, नागेर जी, वही मैं कह रहा था। हेलो, यस यस, एक नेता ऐसा है जो जनता के लिए जीता, 2400 घंटे 7 दिन जनता के बीच, जनता के लिए जीता है। उन्होंने जब सीएम थे तो कहते थे आई एम नॉट सीएम, आई एम कॉमन मैन। नाउ व्हेन ही बिकेम डीसीएम, he said I am dedicated to common man. So he is dedicated to common man every time, every second, every minute. और जहां-जहां जरूरत पड़ी जिम्मेदारी निभाने की, एक वो उप मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री वो भूलिए, लेकिन वो एक जनता से जुड़े हुए उनके सेवक हैं, और वो अपनी उस सेवा भाव को और अपने उस जिम्मेदारियों को समझते हुए वो हमेशा जब भी इस तरह की परिस्थितियां आती है वो सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। आपको ध्यान होगा बजाज जी, जब वो मुख्यमंत्री थे कोकण में एक बारिश के चलते वहां पे बहुत बड़ा हादसा हो गया, वहां कोई जाना भी मुश्किल था, यानी हेलीकॉप्टर तो छोड़ दीजिए, गाड़ियां नहीं जा सकती थी। ये आदमी मुख्यमंत्री वहां पे इस बरसात में पानी में चढ़ करके गया और वहां के लोगों से जाकर के मिला, और उनसे जो कुछ भी उनसे सेवा हुई उन्होंने करने का काम किया। इफ यू रिमेम्बर व्यास जी, दैट वाज अ ट्राइबल सेटलमेंट। वो आदिवासी लोग थे वहां पे और उनकी बिल्कुल जान खतरे में थी, तो बाकी जो एनडीआरएफ की टीम वो तो थी ही, लेकिन अपने एकनाथ शिंदे जी उनके सबसे आगे थे और सबसे पहले वहां पर पहुंचे और सबको सांत्वना दी और सबको वापस लेकर के आए अपने साथ। That time he was chief minister. Yes, he was chief minister. There was no need for him. I have never seen any chief minister in my entire career of 44 years do that. Nobody has done that apart from Eknath Shinde. Also, fact is, no other chief minister has been so physically fit. इतना फिजिकली फिट कोई सीएम ऊपर चढ़ के जाना सुशील व्यास जी, ये आसान बात नहीं। वो भी जब मर्डस्लाइड हुआ है, मर्डस्लाइड के बीच में चढ़ के पैरों तले ऊपर जाना इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्यास जी, ये जो अर्जेंसी शिंदे साहब ने दिखाया, क्या ये सेंटर स्टेट में फिक्शन आ गया? फडणवीस साहब ने कहा कि कुछ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अगर स्टेट डायरेक्टली सबको वहां से एयरलिफ्ट कराता है तो सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन, तो क्या कुछ तनाव आ गया है इंटर स्टेट या सेंटर और स्टेट में? व्यास जी, मुझे तो नहीं लगता कोई तनाव आ गया, और तनाव किसके बीच में आएगा? फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो हम उनका समर्थन कर रहे हैं, तो तनाव किसके बीच में आएगा? अब अगर ये बात होती 1.5 साल पहले, अगर ये घटना होती तो
तब आप कहते तनाव है क्या शिवसेना और भाजपा के बीच में? अब तो भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा का प्रधानमंत्री, तनाव किसके बीच में होगा? जी, लेकिन इस सर तरह की कोई बात नहीं। ये बताएं, अभी क्या है कि चलिए ठीक है, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया ना भी चल रहा हो तो किसको मालूम पड़ेगा? जैसे हम जैसे लोग जो हैं पूछ लेते हैं, किससे पूछते हैं कि भाई बॉडी लैंग्वेज से पूछ लिया, या कोई वहाँ पे किसी मीटिंग में था उससे पूछ लिया कि यार कुछ टेंशन है कि नहीं है। देखिए साहब, टेंशन होना तो लाजमी है। दोनों के दोनों लोग जो हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब, बहुत डायनामिक लोग हैं, बहुत पैशनेट लोग हैं, तो लिहाजा डिफरेंसेस तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि बोथ ऑफ देम, आई थिंक दे आर, बट आई एम आस्किंग यू, both of them will be able to carry this through till the end of the term, where there will be no rift between them? दोनों के बीच में कोई rift नहीं होगा? सर आप बताएं। Both of them are very strong personalities. सर बजाज जी, इस बात का जवाब हम 30 जून 2022 से देते आ रहे हैं, जिस दिन एकनाथ राव जी शिंदे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, कि दोनों तुल्य बल है, कैसे साथ चलेंगे। 3.5 साल तो चल रहे हैं, और आगे भी जब तक जनता ने हमको 2029 तक का मैंडेट दिया है, तो सफलता से सरकार चलेगी, और उसके बाद फिर हम लौट के आएंगे। ये भी मैं आपको आज को आप सर ऐसा है, आई हैव ऑलवेज प्रेज्ड एकनाथ शिंदे साहब एंड फडणवीस साहब, बोथ ऑफ देम आर वंडरफुल पीपल, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और भले ही लोग हमें जो मर्जी कहते रहें, क्या कुछ भी कहते रहें, फैक्ट इज फडणवीस साहब और अपने शिंदे साहब, मतलब इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। जहां तक सुनेत्रा पवार जी का प्रश्न है, शी स्टिल हैज टू प्रूव हरसेल्फ एज अ डेप्यूटी सीएम। लेट्स बी वेरी क्लियर, शी इज जस्ट जॉइंड, सो वी विल नो अभी वो किस प्रकार परफॉर्म करती हैं, कैसे करती हैं, वो वी विल नो। उसके पहले जो चेयरमैन थी, वो उधर बारामती में एक संस्था की, वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाई है, बट वील हैव टू कम टू नो हाउ पॉलिटिकली वाइड शी इज। बजाज जी, माफी चाहता हूँ, देखिए वो राजनीतिक बैकग्राउंड से आई है, जीवन भर उन्होंने राजनीति देखी है, चाहे वो अपने पीहर में हो, उस्मानाबाद में, जो अभी आप लोग इसको धाराशिव कहते हैं, पद्म सिंह पाटिल की सगी बहन है वो। पद्म सिंह पाटिल भी एक स्टॉलवर्ड नेता थे महाराष्ट्र के, और यहाँ आने के बाद भी होम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने पिछले अनेक वर्षों से राजनीति में वातावरण में अपने आप को जिया है, तो वो बहुत जल्दी कोप अप कर लेंगी। All I'm saying is we'll have to wait and see what she does. Oh, that's all I'm saying. Because as far as these two are concerned, they have exhibited a great degree of dedication and determination with regard to Maharashtra, which is absolutely fantastic. Now, let me go back to Dr. Malik. Dr. Malik, प्रदीप जी ने जो सवाल आपसे पूछा था, शायद वो रह गया थोड़ा सा, वो तो ये था कि सोनिया गांधी जी ने जो लेख लिखा अखबार में, उसमें इफेक्टिवली उन्होंने ये बोला कि मोदी सरकार ने ईरान को धोखा दिया है, ये कहा गया। ये भी कहा गया कि आपने शोक तक प्रकट नहीं किया। अब शोक तो प्रकट आज हो गया बहुत अच्छे तरीके से, ऑफिशियल तरीके से। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो ईरान की एम्बेसी में गए दिल्ली में, और वहाँ पर उन्होंने जो कॉन्डोलेंस बुक जो है वो साइन भी करी वगैरह वगैरह। वो इसलिए, और ये कहा जाता है फॉरेन ऑफिस द्वारा कि भाई क्योंकि एक्चुअल मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग पीरियड जो है वो आज से शुरू हुआ है खमेनी साहब का, तो इसलिए मिस्री साहब जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो आज वहाँ पर गए। तो ये कांग्रेस को क्या ज़रूरत पड़ी है सर ये बोलने की कि ईरान को धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? मतलब मेरी समझ में नहीं आता क्या चाह रहे हैं ये लोग, कि हम लोग ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं, अपनी फौज भेज दें ईरान के मतलब की सुरक्षा के लिए, बाकी हमारे जो 8 जो एमिरेट्स हैं और सऊदी अरेबिया जो है जहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं, उन सबको उनके हाल पर छोड़ दें? मतलब क्या चाह रहे हैं कांग्रेसी? मेरी समझ के बाहर है। आपको कुछ समझ आया क्या अविरोध मलिक साहब? जी नहीं, देखिए जहां तक इनके आरोप प्रत्यारोप का विषय, मैं समझता हूं ये एक तरीके से अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए, और पता नहीं वोट बैंक भी क्या ये इनकी इच्छा है, किस प्रकार का इनका टारगेट है इंडियन पॉलिटिक्स में। मैं समझता हूं मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से वो ये राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। इंडिया में पॉलिटिक्स करने पे एक तरीके से इन्हें इस मुद्दे पॉलिटिक्स करनी नहीं चाहिए। दूसरे बहुत से मुद्दे राजनीति करने के, ये इंटरनेशनल विषय है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और निश्चित रूप से इस चीज को इन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मुद्दे के ऊपर यांत्रिक राजनीति ना करें, आंतरिक राजनीति को बढ़ावा किसी रूप में ना दे, तो शायद अच्छा रहे, शायद बेहतर रहे। और जहां तक विषय एक तरीके से इनके आरोप प्रत्यारोप का और ईरान का विषय,
तो बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी कहा और उसके साथ साथ बिल्कुल स्पष्ट हमारी पॉलिसी है। तो शांति प्रिय हम मुल्क है, शांति की बात करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको हम इक्वली ट्रीट करने वाले लोग हैं, सारे रिलीजन्स को हम इक्वली ट्रीट करते हैं और वैश्विक स्तर पे शांति रहे, वैश्विक स्तर पे किसी प्रकार से कोई युद्ध ना हो, किसी देश के बीच किसी प्रकार किसी देश दो देशों या किसी प्रकार देशों के समूह के बीच किसी प्रकार से विवाद ना हो। हम इस चीज के पक्षधर कल भी थे, आज भी है, भविष्य भी रहेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का, कांग्रेस पार्टी का, अपोजिशन का, अखिलेश जी का, संजय सिंह जी का, अन्य राजनीतिक दलों का, तो मैं समझता हूं वो लोग इस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि भाई भारत का स्टैंड नहीं। क्यों नहीं है भारत का स्टैंड? भारत का तो बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है, स्पष्ट मानना है। हम शांति की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, पीस को प्रमोट करने वाले हम लोग हैं। हम किसी प्रकार से हिंसा के समर्थक न थे, न हो सकते हैं। ये शांति प्रिय मुल्क है, गांधी जी का मुल्क है, ये गांधी जी का देश है और गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने वाले हम लोग हैं, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, बिल्कुल क्लियर है। अब इस चीज को बार बार मुद्दा बनाना, बार बार इस विषय पर चर्चा करना और कहते रहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि भारत का कोई स्टैंड नहीं है, तो ये चीजें बाहर भी जाती है, ये दूसरे मुल्कों में भी हेडलाइन के रूप में चलती है, तो मैं समझता हूँ ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन विरोध मलिक साहब, मेरा इसमें मत ये है कि विश्लेषण मेरा जो है वो ये है कि वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप लोगों को प्रोवोक किया जाए, सरकार को प्रोवोक किया जाए कि कोई गलत कदम उठाया जाए। आज जैसे मोदी जी अभी चल रहे हैं, मोदी सरकार जो चल रही है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। भारत जो है वो इस हिंसा के बाहर है, भारत जो है इस जंग के बाहर है। भारत का कुछ लेना देना नहीं कि आपस में क्या लड़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही। वी आर सेफ, वी आर सेफली प्रोटेक्टेड, वी आर फ्रेंड्स विद एवरीबडी। सीधी बात है कि 8 के 8 जो अमीराती हैं उनके साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, सऊदी अरेबिया के साथ भी दोस्ती है, इजराइल के साथ भी दोस्ती है, ईरान के साथ दुश्मनी नहीं है, यूएसए के साथ भी दोस्ती है। ये चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं ये कि हम सबसे दुश्मनी ले लें, कि मोदी जी कुछ ऐसा कदम उठाएं प्रोवोक होकर के कि हम जाएं और मतलब सब लोगों से दुश्मनी ले लें। जैसे पहले आपको याद होगा जब इतने महीने से मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया ट्रंप साहब का, आपको याद होगा ट्रंप साहब बार बार अपना जो एक्स का जो अलग है वो ट्रुथ सोशल करके जो है उनका उस पर बार लिख रहे थे, आई हैव बीन कॉलिंग मोदी, मोदी इज नॉट टॉकिंग टू मी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो बार कह रहे थे कि उन्होंने शांति कराई, युद्ध विराम कराया भारत और पाकिस्तान के बीच में, कोई 60 बार बोल चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो वो चाह रहे थे कि क्या तू मैं हो प्रधानमंत्री जी और प्रेसिडेंट के बीच में। मतलब मेरी ये समझ के बात है कि इतनी 1885 की बनी हुई पॉलिटिकल पार्टी वो इस किस्म से कैसे बिहेव कर सकती है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। डॉक्टर मलिक प्लीज बताएं ना सर, मतलब मेरी समझ के बाहर है ये हो क्या रहा है। आई रियली वांट टू नो सर। नहीं देखिए, यही होता है, यही हो रहा है। असल में इन्हें एक तरीके से अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, विपक्ष वालों को, कांग्रेस वालों को, इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। और ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स कौन सी करना चाह रहे हैं ये मुझे भी क्लियर कट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ये मुसलमान की बात कर रहे हैं तो मुसलमान तो बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक जानता है कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत का बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है। भारत हमेशा से बिल्कुल स्पष्ट तरीके से शांति के पक्ष में रहा। और दूसरी बात, अगर ये इस चीज से यहाँ के मुसलमान को रिलेट करते हैं तो यहाँ के मुसलमान का, लखनऊ के रहने वाले मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, बंबई के मुसलमान का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, नागपुर के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है, मेरठ के मुसलमान का, अलीगढ़ के मुसलमान का, रामपुर के मुसलमान का इस मुद्दे से, ईरान वाले मुद्दे से जो ये मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है एक तरीके से अगर बात करें जाए भारत की, तो भारत शांति के साथ था, शांति के साथ है, शांति के साथ रहेगा। लेकिन सर ऐसा है, हो सकता है, और जो हुआ गलत हुआ, अशांति हो रही है गलत हो रही है, हिंसा हो रही है गलत हो रही है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मलिक साहब आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा व्यास साहब भी इसके ऊपर कुछ दे। लेकिन हाँ ठीक है सर, लेकिन मैं जरा सवाल पूछ लूं सर। ये है कि भाई क्या है कि भोपाल में, अपना मुंबई में, लखनऊ में, कारगिल में, श्रीनगर में, यहां पर शियाओं ने प्रदर्शन किया खामेनी साहब के जाने के एवज में। वो जो मातम मनाते हैं ना, वैसा उन्होंने मातम मनाया। उन्होंने शायद उससे प्रेरित होकर के जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, थोड़े बहुत समाजवादी पार्टी के लोग हैं, वो सब चिल्ला रहे हैं कि भाई आपको जरा ज्यादा अग्रसर होना चाहिए, ज्यादा आक्रामक होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। आज की तारीख में आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब ये कोई देश हित में तो नहीं है सर, ऐसे सवाल जो हैं।
ये मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे सवाल कोई देश हित में पूछे गए हों। डॉक्टर मलिक, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? नहीं, देखिए बिल्कुल ये देश हित में किसी रूप में नहीं है, और देश का तो बिल्कुल स्पष्ट है, हम तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को अच्छा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, गरीब के हित की बात कर रहे हैं। अगर हमारी कहीं कमी हो, ये चीज बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक मोदी जी कहते हैं, जिस दिन से मैं इस देश का प्रधानमंत्री बना उस दिन से कोई करप्शन है तो उस करप्शन के सबूत लाइए, और निश्चित रूप से जो एक कहे वो करने को तैयार। जी। लेकिन इनके पास सबूत नहीं है। केवल आरोप लगा देने से किसी चीज पे काम नहीं चलता, आप सबूत दिखाइए, तथ्यों पे बात करिए, और देश को मजबूती के साथ मोदी जी नेतृत्व दे रहे हैं। दूसरी चीज, इंटरनेशनल पॉलिसी आज देश की मजबूत है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक पटल पे भारत बहुत मजबूत है। और जहां तक विषय एक तरीके से अमेरिका की बात कर ली जाए, किसी मुल्क के साथ मित्रता की बात कर ली जाए, अच्छी दोस्ती है, और कोई भी मुल्क विश्व में भारत का दुश्मन आज किसी रूप में नहीं है। अगर कोई है तो उसकी कमर तोड़ने का काम, पाकिस्तानी कमर तोड़ने का काम भारत के द्वारा किया गया, उनको जवाब दिया गया, घर में घुस के मारा गया, और पूरा पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, वो सबने देखा। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से किसानों के संगम में उन्होंने कहा कि ये द डेथ वारंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज साइंड द डेथ वारंट ऑफ द फार्मर्स in the Indo-US deal. I challenge Prime Minister Modi to a debate. राहुल गांधी जी, आपने किसानों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। डॉक्टर अमीरुल मलिक साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आपने किसानों के डेथ वारंट साइन कर दिया है इंडो-यूएस डील में। ये राहुल गांधी जी का कहना है। डॉक्टर मलिक जी, नहीं, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का, तो विपक्ष को अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन तथ्यों के साथ सवाल उठाए जाए तो शायद बेहतर है। और रही बात राहुल जी की, तो हमारे राहुल जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, वो जहां भी रैली करते हैं वहीं बीजेपी जीत जाती है, तो जनता सब समझती है। इसीलिए तो इससे ज्यादा कहने की मैं सोचता हूं मुझे आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि गरीब देश का निवासी, देश का मतदाता बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये केवल पॉलिटिक्स करने का काम कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, तथ्यों के आधार पर बात किसी रूप में नहीं हो रही है। और जहां तक इंटरनेशनल पॉलिसी का विषय है, तो देश आज मजबूत है, रक्षा नीति मजबूत है देश की, और किस तरीके से वित्त के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बेरोजगारी को समाप्त करने के क्षेत्र में, एक तरीके से गांव गांव तक शौचालय बनवाने के, घर घर तक उसके क्षेत्र में, या फिर एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर हर घर तक पहुंचाने के क्षेत्र में निरंतर देश प्रगति करना। जी, वी वेलकम अशोक यादव साहब। अशोक यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्कार सर। अशोक यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज आ रही है नमस्ते सर? जी जी, आ रही सर। तो अशोक यादव जी, आप कैसे देखेंगे इसको? आज क्या हुआ कि 2 रशियन ऑयल टैंकर जो ईस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे, आज मुड़ करके उन्होंने रुख कर लिया भारत की तरफ। भारत अब रशियन ऑयल खरीदने को मतलब चालू हो गया है। दे विल बी हियर बाय टुनाइट, आई थिंक, either by tonight or by tomorrow morning, and they will offload their load at जामनगर। जामनगर पे उनका जो लोड है वो ऑफलोड कर देंगे। और उसके साथ में अब इंडिया ने बहुत क्लियर कर दिया कि भैया स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आर क्लोज्ड, वी हैव नो अदर चॉइस, वी हैव टू बाय रशियन ऑयल। और उसको लेकर के सुनने में ये आ रहा है कि जो इजरायली और जूइश लॉबी है वाशिंगटन में, उन्होंने भारत की बहुत अच्छे तरीके से पैरवी करी है। अशोक यादव जी बोलिए सर। नहीं, देखिए, रशियन ऑयल का जो सरकार ने जो इंपोर्ट, मुझे लगता है कि 30% लास्ट ईयर की तुलना में कम किया है जी, जो कि तो रिकॉर्ड में है। ये तो सबको पता है कि 30% रशियन ऑयल का इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके कहने पर कम किया है, ये सवाल तो जनता पूछ रही है। तो हमारी विदेश नीति को हमारी सरकार के अलावा अगर हमको वेनेजुएला से खरीदना है, या हमको अमेरिका से खरीदना है, हमको किससे खरीदना है, ये इसका निर्धारण हमारी सरकार को करना चाहिए, न कि किसी तीसरे ताकत को करना चाहिए। और जो आपने कहा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से रशियन टैंकर्स जो है इंडिया में आ रहे हैं, ये तो मजबूरी की दोस्ती है ना। ये तो मतलब करेक्ट जी हाँ, ये तो मजबूरी की दोस्ती है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप रशियन ऑयल टैंकर को ले रहे हो ताकि उनको थोड़ा सा सस्ता पड़े। और क्योंकि स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से पहले भी हुआ था जब ईरान के ऊपर जब उन्होंने सैंक्शन लगाई थी, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी थी, वी हैड टू स्टॉप बाइंग इरानियन ऑयल। अर्लियर वी वर बाइंग 70% ऑफ आवर ऑयल वाज कमिंग फ्रॉम ईरान। तो वो तो सर हो ही रहा है। तो क्या अभी उसके बारे में, माय पॉइंट इज दैट आइदर वी शुड बिकम लाइक चाइना, या तो हम चाइना की तरह बिल्कुल पावरफुल हो जाएं और कहें कि भैया तुमने जो मर्जी करना करो, तुम हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाओगे, हम तुम्हारे ऊपर 500% लगाएंगे। फॉर दैट यू नीड टू बी एज पावरफुल एज चाइना, विच वी आर नॉट। अशोक यादव साहब,
तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा ना। आपको लग नहीं रहा आज की तारीख में कि मोदी, सॉरी प्रदीप जी, कि मोदी सरकार जो है वो बैलेंस करके चल रही है, भारत का हित सामने रख के चल रही है। आखिरकार 1 करोड़ लोग हैं ना, अभी 8 अमीराती देश जो हैं उसमें 1 करोड़ लोग के करीब हैं, तो उन सब लोगों को वापस लाना है। तो 58 फ्लाइट जो है वो जा चुकी हैं, एंड क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, अभी तक 230 कहीं से आए हैं, कहीं से 200 आए हैं। यहां तक कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी 2 चार्टर्ड प्लेन भेजे अपने कुछ मराठी लोगों को वापस लाने के लिए। तो आप बताएं सर, तो क्या आपको लगता नहीं कि हमें इस वक्त बैलेंस करके चलना पड़ेगा? बोलिए अशोक यादव जी प्लीज। नहीं, बिल्कुल, देखिए बैलेंस करके चलना चाहिए हर सरकार को। और जो हमारी विदेश नीति रही है, ये हमारे जो संविधान का आर्टिकल 51 जिसके तहत हमारी विदेश नीति रही है कि हमें हर देश की जो सॉवरेनिटी है उसका ध्यान रखना चाहिए। जी दुरुस्त बात। अगर कोई देश हमारे मतलब पैरेलल जिस तरह से अमेरिका का इंक्रोचमेंट हो रहा है अन्य हमारे पड़ोसी देशों में, यह इंक्रोचमेंट कम से कम हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक बयान तो जारी कर सकते हैं, और वो बयान ऐसा हो जो हमारी जो परंपरागत जो फॉरेन पॉलिसी रही है गुटनिरपेक्षता की, उस फॉरेन पॉलिसी से मिलता जुलता बयान होना चाहिए। अशोक यादव जी, क्या ये ठीक है जी, क्या ये ठीक है कि अखिलेश यादव जी पेज होमेज टू आयतुल्लाह खोमेनी? क्या ये देश के लिए ठीक है जब प्रधानमंत्री खुद वहां पर कंडेम नहीं किया जो अटैक हो गए, असैसिनेशन ऑफ आयतुल्लाह खोमेनी? अखिलेश यादव जी ही पेज होमेज। ये ऐसे हेडलाइन सब जगह छप रहे हैं कि आपने होमेज पे किया आयतुल्लाह खोमेनी के डेथ पर, असैसिनेशन पर। या सोनिया जी भी वही कह रहे, राहुल गांधी जी भी वही कह रहे। why you going opposite to India's policy? जब प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, आप किस प्रकार से होमेज पे कर रहे हो? अशोक यादव जी, क्या संदेश देना चाहते हो आप देश को? देखिए, जब हमारे देश की सरकार ये काम अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, दबाव की वजह से, इजराइल और अमेरिका के दबाव की वजह से हमारी देश की सरकार जब वो बात नहीं कह रही है, तो मजबूरी में हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे माननीय सोनिया गांधी जी हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हो, ये हमारे देश की जो आवाज है, इस आवाज को कह रहे हैं। ये उनकी पर्टिकुलर बात नहीं है। हमारे देश की जो आपको पता होगा लगभग 5000 फारसी शब्द हमारे हिंदी भाषा में मिले हुए हैं। हमारा ईरान से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हर तरह का सदियों पुराना संबंध भाई। और अभी ईरान ने हमको ग्वादर पोर्ट पर हमको स्पेस भी दिया था इंडिया का बंदरगाह बनाने के लिए, जैसा कि चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक फ्रेट कॉरिडोर जो कि बन रहा था उसके जी। तो ईरानियन, हमारे ईरान से हमेशा हमारा दोस्ताना ताल्लुकात रहा है। और यहां तक कि आपको याद होगा जब IOC जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन के जो देश हैं, ये कश्मीर के मामले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश किया था, इंटरनेशनल लेवल पे मामले को उठाने की कोशिश किया था, उस समय ईरान की सरकार ने और यही आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने उसका विरोध किया था और कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय होने से रोका था। तो ईरान हमारा जी अशोक यादव जी उस वक्त किया था। उसके बाद यही आयतुल्लाह खामेनी साहब ने OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में यही आयतुल्लाह अली खमेनी के डायरेक्शन पर एक प्रपोजल लाया गया था आर्टिकल 370 के रिपील के बाद, कि जो भारत के मुसलमान हैं, और उनकी तुलना उन्होंने म्यांमार के मुसलमानों और गाजा के मुसलमानों के साथ की थी। बाकी OIC के जो नेशंस हैं उन्होंने नकार दिया था इसको। सो खमेनी साहब दोनों तरफ चले थे। हाँ, UNHCR यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन में 2005 में यही आयतुल्लाह खमेनी साहब ने भारत की मदद की थी, और अभी 2023-2024 में यही आयतुल्लाह अली खामेनी ने भारत के खिलाफ बहुत बोला था। यह कहा था कि जो मुसलमानों की दुर्दशा है यहाँ पे, उसको लेकर के दुनिया के जितने भी मुस्लिम देश हैं उनको सबको इकट्ठे होकर के, आई रिमेंबर द इंग्लिश ट्रांसलेशन, ही सेड ऑल द मुस्लिम्स इन इंडिया मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम हिंदू रूल। दीज आर द वर्ड्स मिस्टर अली खामेनी यूज्ड। अब आप बोलें सर प्लीज। यादव साहब देखिए, जो सरकार की पॉलिसी रही है, हमारे देश की जो सरकार की पॉलिसी, खासतौर से मोदी सरकार की पॉलिसी रही है, इस बात को लेकर के सवाल तो आपको याद होगा राजीव जी, व्हाइट हाउस में भी उठा था, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की, करेक्ट। एंड शी वाज फ्रॉम हैदराबाद, इंडिया के हैदराबाद। जी, हाँ, बिल्कुल, हाँ, इंडिया ने। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया था,
जो बात आयतुल्लाह अली खामनेई ने किया था, हालांकि वो पत्रकार थी तो उन्होंने एक मर्यादा का पालन करते हुए सवाल पूछा था मोदी जी से, और मोदी जी उसमें लंबे लंबे भाषण दे दिए कि डेमोक्रेसी रन्स इन अवर ब्लड, हम डेमोक्रेसी को जीते हैं मरते हैं, पता नहीं क्या क्या। तो इस तरह की चीजें हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं कुछ खास वर्ग के लोगों के खिलाफ इस तरह की पॉलिसी बनाकर मेजोरिटेरियनिज्म, जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति के तहत अपनी सत्ता पे पकड़ मजबूत असल में करने के आपको लिए लगता है ऐसा हो जो रहा है? सवाल। अशोक यादव जी, जी? असल में आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा सर, यू आर अ वेरी लर्नड मैन। आप बताइए सर, इस्लाम के जो 72 फिरके हैं उनको सबसे ज्यादा इजाजत या आजादी कहीं किसी जगह पर मिली है, वो भारत में मिली है। किसी भी मस्जिद के अंदर कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान में बाकी हर जगह पे शिया मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है हर फ्राइडे को। सर आप मुझे बताइए सर, मुस्लिम्स इन इंडिया ट्रीटेड लाइक रोहिंग्यास इन म्यांमार एंड इन गाजा। आप बताइए कौन बॉम्ब कर रहा है सर मुसलमानों की बस्तियों को? कोई ड्रोन भेज रहा है वहां पे जाकर के उनको मारा जा रहा है? आप बताइए अशोक यादव जी, प्लीज बी फेयर सर, प्लीज। देखिए ऐसा है राजीव जी, हमें पाकिस्तान से तुलना नहीं करनी है अपने देश की, हमें म्यांमार से बांग्लादेश से तुलना नहीं करनी है। हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो 5 डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज से हमें तुलना करना चाहिए हिंदुस्तान की, कि जिस तरह से एक तरह मिली जुली सभ्यता अमेरिका में रहती है, ब्रिटेन में रहती है, अन्य देशों में रहती है, उससे भी बढ़िया से मिली जुली सभ्यता हमारे हिंदुस्तान में रहती थी, हमारी मतलब परंपरा रही है। लेकिन इस जो परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, इस तरह की परंपरा को कहीं न कहीं इस सरकार ने सत्ता लोलुपता में इसको चोट पहुंचाई है। और एक दो बार नहीं, इस देश के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए माननीय मोदी जी ने, आप उनके चुनावी भाषणों को अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो ये बात क्लियर कट समझ में आएगी कि उनकी मंशा क्या थी। अशोक यादव लोकसभा जी, चुनाव हर चीज पे आलोचना करना, हर चीज पे आलोचना करना। श्रीलंका के कोस्टल कोस्ट के बाहर ईरानियन फ्रिगेट को मार गिराया इंडियन ओशन में। वो फ्रिगेट आए थे इंडियन नेवी के, आर्मी जो भी इंडियन नेवी के एक्सरसाइज में। ईरान का कहना है कि इंडियन नेवी के गेस्ट बनकर हम लोग आए थे, इंडिया का गेस्ट था हमारा फ्रिगेट, और उसको यूएस सबमरीन ने उड़ा दिया। बट इंडियन नेवी का कहना है हमसे कोई वार्तालाप नहीं हुई। 8-9 दिन से वो इंटरनेशनल वाटर्स में रोम कर रहा था, घूम रहे थे विदाउट एनी डायरेक्शन। नो दे आस्क्ड अस हेल्प, नो दे कन्वेड एनी आस्क रिक्वेस्ट हेल्प ना। इस पर भी मोदी जी को आलोचना करना कि ठीक है इंटरनेशनल वाटर्स में अगर कुछ होता है इन स्टेट ऑफ वॉर। नहीं देखिए, जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की जिस तरह से गुंडागर्दी करते हुए उनको मारा गया, इस पर अगर मोदी जी नहीं कुछ बोले तो ये फ्रिगेट के ऊपर जो अटैक हुआ है उस पे क्या बोलेंगे? उस पे नहीं बोलेंगे, वो कहां से बोलेंगे जब एक देश के सर्वोच्च नेता के असैसिनेशन पर उन्होंने कुछ नहीं बोला? इस पे क्यों बोलेंगे वो? हालांकि उनको बोलना चाहिए, जो हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी रही है उस फॉरेन पॉलिसी को अगर वो उसके तहत रहते तो बोलते, क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई एक ऐसे शख्सियत है, उन्होंने हमारे देश के बारे में जो चीज आपने बताया, कुछ अच्छा भी बोला कुछ बुरा भी बोला, जो भी चीजें हुई हैं। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो एक तरह से जो अमेरिकन या जो इजरायली दादागिरी है उसके सामने उन्होंने सीना तान के खड़े रहे, और जो उनकी उन्होंने बहादुरी दिखाई और जो शहादत उन्होंने दी, वो चाहते तो वो भी डांसिंग और सिंगिंग कर सकते थे ट्रंप के सामने, वो चाहते तो वो भी मॉस्को में या चाइना में जाके शरण ले सकते थे, वो चाहते तो किसी बंकर में छुप के अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल साहसा अपने बहादुरी का परिचय दिया, अपने देश पे वो शहीद हो गए हंसते हंसते। तो उनकी शहादत पर, उनकी बहादुरी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं, उन्होंने उनके जो होमेज पे किया है, उनका जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो एक अच्छा है, उन्होंने एक मैसेज दिया है कि हम छोटे देश हैं लेकिन अमेरिका और चाइना के सामने, इजराइल के सामने हम इस तरह नतमस्तक नहीं हो सकते। But our foreign secretary has gone there, sir. Our foreign secretary has gone to the Iranian embassy. वहां पर उन्होंने condolence book साइन करी है. We have expressed our condolences officially at the passing of Ayatollah Ali Khamenei, और उनके बेटे अब बन गए हैं मुस्तफा खामेनी, वेरी फ्रैंकली। तो इसके पहले कि मैं व्यास जी के पास जाऊं, आई वुड लाइक टू आस्क अविरल मलिक। तो अविरल मलिक साहब, क्या आप मुसलमानों को इतना तंग कर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूं अविरल मलिक साहब, क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो दुर्दशा है वो जैसे म्यांमार में रोहिंग्या की है, जैसे गाजा में इजराइल ने बम कर करके मुसलमानों की हालत खराब कर दी है, क्या वैसी है अभी?
इंडियन मुस्लिम्स की? सर आपसे पूछ रहा हूँ अविरल मलिक साहब, क्या आप सभी मुसलमानों को मारना चाहते हैं? डॉक्टर मलिक प्लीज। नहीं, देखिए यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ पे अशोक यादव जी मौजूद है, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को अधिकार है विषय उठाने का, सवाल रखने का, सवाल पूछे, हमें कोई किसी रूप में आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र की व्यवस्था है। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष का और एक तरीके से जो पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात की, मुस्लिम समुदाय की जो बात की, तो मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी हमारे लिए सब इक्वल हैं। वो इंडिया में भी इक्वल हैं, वो विदेशों में भी इक्वल हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है और दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से सब बराबर है, सबका सम्मान करना अनिवार्य है और यही हमारा नैतिकता एक तरीके से सिखाती है और उसके साथ साथ संविधान भी यही सिखाता है और जो हमारी मॉरल ड्यूटी है वो यही है, बिल्कुल स्पष्ट है। और हमें हमेशा से हर भारतीय को यही सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब आपस में भाई भाई। तो इसी एक तरीके से गंगा जमनी तहजीब के आधार पे सब लोग पले बढ़े हैं, तो इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय ईरान का है या किसी मुल्क की बात कर ली जाए तो कोई स्पेसिफिक एक जो सवाल उठाए जा रहे हैं मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। But हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर है। Dr. हम Malik- शांति प्रिय लोग हैं, मनपसंद लोग हैं, शांति की बात करने वाले लोग हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हर देश में हर मुल्क में शांति रहे इसकी बात करने वाले हम भारत के नहीं, लोग हैं। शांति नहीं हो निश्चित रहा। रूप से वही हमारी अशोक सरकार का यादव जी यही कह रहे हैं। स्टैंड है। आप हर इसी के बात आधार पर हम चलते हैं और चलते रहेंगे। हर और कुछ बात पर लोग, हिंदू मुस्लिम कर रहे जो हो। है नारेबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो चीजें ठीक नहीं है। अशोक यादव जी जो कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं हर चीज पर। आप मोदी साहब अब वो मुरुगन टेम्पल में गए, मुरुगन टेम्पल जहां हिंदू मुस्लिम फ्यूड चल रहा है, मैटर कोर्ट में है। मदुराई के वो मंदिर है जहां दीप को लेकर एक बहुत बड़ा समस्या चल रहा है। एक सिंगल जो मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर था उसको डीएमके ने चैलेंज कर दिया है। वहां हिंदू मुस्लिम के विवाद चल रहा है। वहां उस हिल में, मुरुगन हिल में क्या मोदी साहब का जाना ठीक था? स्पेशली व्हेन देयर इज अ कंट्रोवर्सी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्या आप तमिलनाडु में जो इलेक्शन है उसको प्रभावित करना चाहता है, वहां पर डिवाइड करना चाहता है रिलीजन के बेसिस पर? डॉक्टर मलिक जी देखिए हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, हम तो मानवतावादी लोग हैं, इंसानियत वाले लोग हैं। और दूसरी चीज जहां तक अशोक जी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो मैं भी भारतीय हूं, अशोक जी भारतीय हैं, अखिलेश जी भारतीय, हम सब भारतीय हैं एक तरीके से सर्वप्रथम सबसे पहले। और अखिलेश जी ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक, वो एआई वाला जो मामला हुआ था, एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो कपड़े उतार के वहां नंगा नाच मचा दिया था, तो अखिलेश जी ने उस पर जो स्टैंड रखा था वो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। एकदम सही बात उनके द्वारा कही गई थी, एकदम सही स्टैंड रखा गया था। जब राष्ट्र की बात आए वहां राष्ट्र की बात की जानी चाहिए। और राजनीति तो होती रहती है, 365 दिन राजनीति होती है, राजनीति हर मुद्दे पे होती रहती है, वो करते रहे, वो मुद्दे आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन भारत का जहां तक विषय तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी इमेज है उसको आगे बढ़ाना, मजबूत करना, सवाल का जवाब तो दो। दीपम कंट्रोवर्सी जब चल रहा है दो रिलीजन के बीच में, दो धर्म के बीच में, हिंदू सर केस चल रहा है, केस चल रहा है और डीएमके ने चैलेंज किया। क्या प्राइम मिनिस्टर वहां जाकर उस मुरुगन टेम्पल हिल में जाकर जहां दीपम कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या इस चीज को और इन्फ्लेम नहीं करेगा? क्या इस चीज को और भड़काएंगे नहीं? डॉक्टर मलिक जी डॉक्टर मलिक जी आपका मेरे से सवाल है? आप ही से सर इसका जवाब नहीं दिया सर। नहीं, आपकी आवाज सर वो आपकी आवाज उस साइड से हाईकोर्ट में केस चल एक बार मैं रिजॉइन करता हूं, आपकी आवाज नहीं आई है सर। हाईकोर्ट में केस चल रहा है सर। नो ही कैन हियर। वन सेकंड सर। डॉक्टर मलिक, वो मदुराई हिल में जो मुरुगन का मंदिर है जिसको सुब्रमण्य स्वामी मंदिर बोलते हैं, वहां पर एक दीप को लेकर के कोर्ट में केस चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का वहां पर जाना इस वक्त जब केस चल रहा है, क्या वो ठीक है आपके मुताबिक, या सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के चुनाव से प्रेरित है? ये सवाल है सर। या हिंदू मुस्लिम में एक दरार फिर पैदा करना चाहते हो, वहां पर फिर हिंदुओं को और मुसलमानों को इस प्रकार से भड़काना? डॉक्टर मलिक Can you hear us, sir? Dr. Malik can't hear us. Achha, Right, Sushil Vyas ji. Let him how take do the you see question. this particular issue? Deepam controversy, Murugan Temple Hills, so High Court और मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस सुब्रमण्यम ने ऑर्डर दे दिया, उसको डीएमके ने चैलेंज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर goes and visits that particular hill, Murugan Temple. Do you think it will inflame the passions? Do you think it was
duty-wise right for a prime minister to go in a disputed territory, disputed area within the country. Vyas जी, आपका म्यूट पर है सर, म्यूट पे सर, यू आर ऑन म्यूट सर, अनम्यूट करिए ना। हेलो, हाँ सर, अभी आवाज आई the आपकी। question. there was some problem with the airport, so मैं ये कह रहा था नाम्बियार जी हाँ, कि forget about Modi ji, Prime Minister of this country. He not a citizen of this country. Yes, he is, Can he not go to that temple as a devotee? but not as prime minister, sir. When a No, case he's is not. going on, He apart from Prime Minister, he is citizen of this country also and Hindu devotee also. He का मुरुगन टेम्पल में उनके अलावा कोई जा नहीं रहा है क्या दर्शन करने? बिल्कुल हम ये जानना चाहते हैं। जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो फिर वो क्या, वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी भावना भड़काने के लिए जा रहे हैं, वो भी दंगा भड़काने के लिए जा रहे हैं क्या? सर, क्या मतलब दंगा तो मंदिर पे भड़केगा जाके नहीं। कोई दर्शन कर रहा है, उसको भी कह रहे हैं किस तरह की बात। भगवान मालिक है उनकी हताशा और निराशा personally, की। I am very happy that the Prime Minister has gone to the Subramania Swami temple, which is fantastic. And Murugan is making a huge comeback in India. कार्तिकेय महाराज जो हैं, एक जमाने में यूपी का जो इलाका है, गंगा का जो इलाका है, वहां पर तकरीबन 510 मंदिर हुआ करते थे, आज की तारीख में सिर्फ 11 हैं। So I hope there is a revival of Kartikeya, that is Murugan. I hope that happens. But अशोक यादव जी, आप कैसे देखते हैं इसको? जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा, बड़ा अहम सवाल है सर। केस चल रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद पहुंच गए वहां पे। अब लास्ट टाइम कब आए थे वहां पे, मुझे तो याद नहीं है। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉन टू द मदुराई हिल, दिस इज द फर्स्ट टाइम ही हैज गॉन टू द सुब्रमण्य स्वामी टेंपल। देयर इज अ केस गोइंग ऑन राइट नाउ एंड देयर इज आल्सो द इलेक्शन कमिंग अप इन तमिलनाडु। तो आप बताइए सर प्लीज। ये देखिए, तो अब इसमें कुछ बताने को नहीं है, सब लोग समझ रहे हैं कि ये इस तरह की इंसिडेंट जो है, इस तरह की इंसिडेंट इनके लिए फुल टॉस बॉल की तरह होती है, फुल टॉस। और इस पे ये लोग सिक्सर, क्या मतलब, हम लोग तो एक ही सिक्सर देखते हैं, एक ही बाल में 2-3 सिक्सर मार देते हैं ऐसे बॉल्स पे ये लोग। तो ये तो अपॉर्चुनिटी इनके लिए, गुड अपॉर्चुनिटी नहीं, गुड अपॉर्चुनिटी है, और इसको इनकेशमेंट ये लोग करते हैं। और इनकी जो इलेक्शन स्ट्रेटजी होती है, मुझे लगता है कि ये ब्रेन वॉश करके चुनाव जीतती है भाजपा, चाहे जैसे भी ब्रेन वॉश करे। जैसे marijuana का जो नशा होता है, तो एक बार आदमी ले लेता है तो फिर वो ज्यादा सोचता समझता नहीं है, बस उसी फ्लो में चला जाता है। उसी तरह से marijuana का रूप है ये, इस तरह का जो रिलीजियस जो उन्माद फैलाते हैं, इमोशंस जो फैलाते हैं चुनाव में। ये कोई भी जो देश है, सभ्य देश है, आप देखिए डेमोक्रेटिक देश है, वो बेसिक जो फंडामेंटल इश्यूज पे चुनाव लड़ते हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल इश्यूज चुनाव में गायब हो जाते हैं। क्या बचता है? सिर्फ हिंदू मुसलमान बचता है, और सारे फंडामेंटल इश्यूज सब गायब। ये इनकी स्ट्रेटजी भाई है, और यही स्ट्रेटजी इनकी है जो एक तरह से ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं और चुनाव दर चुनाव जीतते रहते अशोक यादव जी, हैं। तो मगर इसमें कुछ बताना नहीं है। आप अप्रिशिएट नहीं करते डेवलपमेंट एजेंडा। योगी आदित्यनाथ जी सिंगापुर, जापान 1.5 लाख करोड़ का एमओयूज लेके आए, 2.5 लाख करोड़ का फ्रेश ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस लेके आए। ये डेवलपमेंट का लहर योगी जी लेके आ रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक लहर है, तो यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग द गुड बिजनेस दैट योगी आदित्यनाथ जी इज डूइंग। जो एफडीआई लेके आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, यूपी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो उन्होंने प्रोजेक्ट किया पूरे देश विदेश में। व्हाई डोंट यू अप्रिशिएट दैट अशोक यादव जी? देखिए, यूपी की इकोनॉमी की अगर बात कर लिया जाए, तो जो आप योगी जी या उनकी सरकार जो लगातार यूपी की इकोनॉमी के बारे में जो भ्रामक आंकड़े देती है, इसकी एक झलक मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे योगी जी कहते हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम यूपी को बनाएंगे, तो उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के पीछे वो कोई स्कीम नहीं बताते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं बताते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। वो सिर्फ कहते हैं हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए जो रिक्वायर्ड ग्रोथ रेट है वो 30% से ऊपर का चाहिए। और प्रेजेंट में जो उत्तर प्रदेश का जो करंट ग्रोथ रेट है ये 13% के लगभग है, 12 से 13%। अब वो 12 से 13% का जो ग्रोथ रेट है, उसको 30% के ग्रोथ रेट को ले जाने के लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है।
बस ये कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इनका जो दूसरा मैं बताऊंगा आपको, ये टोटल जो इन्वेस्टमेंट समिट, इन्होंने कई इन्वेस्टमेंट समिट, इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट जो है आयोजित करी और उसमें 50 लाख करोड़ का एमओयू का दावा किया इन्होंने, 50 लाख करोड़ एमओयू। और जो एक बड़े बिजनेस अखबार ने खबर छापी थी कि टोटल जो 50 लाख का था एमओयू का, लोग जो दावा कर रहे थे 1.1 लाख करोड़ का ही प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ अभी तक। अब बताइए 50 लाख करोड़ जो कि यूपी की जीडीपी से भी ज्यादा है, उतना का इन्होंने एमओयू साइन करने का दावा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था। और जो सैंक्शन हुए प्रोजेक्ट 1.1 लाख करोड़, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बिजनेस अखबार का दावा है। तो आप बताइए आंकड़े क्या करते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे तो उसका 10% 5% भी नहीं उतर रहा है। तो आप जापान घूमिए, जहां भी घूमना घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में भ्रामक आंकड़े मत फैलाइए। आपका जो पिच है हिंदू मुसलमान, उसमें आप अच्छा खेलते हैं, उसमें खेलिए, इकोनॉमिक चक्कर में आप ना पड़िए। इकोनॉमिक के चक्कर में पड़ेंगे तो हम पूछेंगे कि कितना मेट्रो आपने बना दिया, हम पूछेंगे कि कितना एक्सप्रेसवे आपने बनाया जो कि क्वालिटी वाला एक्सप्रेसवे, हम पूछेंगे पेपर लीक होना कब बंद होंगे, हम पूछेंगे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार कब रुकेगा, हम पूछेंगे कि आप ही की सरकार है भाजपा की राजस्थान में, बड़े इंजीनियरों को उन्होंने एफआईआर कराया, लेकिन आपके सरकार में क्या हो रहा है? फिर हम पूछेंगे ना कोडिन माफियाओं को क्या हो। हमारे पास तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप उसको कह रहे हो कि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप इकोनॉमिक बात करें फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास डेटा नहीं है। डेटा हम लोग लेके बैठेंगे आपके इकोनॉमी का जो पोस्टमार्टम करने के लिए, तो हमारे पास डेटा है ना। इकोनॉमिक बात करके आप नहीं निकल पाएंगे। आप हिंदू मुस्लिम में खेलिए, वो आपकी पिच है, लेकिन उसका भी इलाज है हमारे पास। अशोक जी खेल रहे, उन्होंने पूछा, अखिलेश यादव जी से पूछा योगी जी ने, क्या मथुरा मंदिर के रिवाइवल में वो साथ देंगे? क्या आप साथ देंगे अशोक यादव जी? कृष्ण जन्मस्थान, प्रदीप जी, मैंने आपके जो सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि जिस पिच के वो खिलाड़ी हैं उस पिच में वो खेलेंगे। मथुरा, काशी और कहां कहां ये सब जाएंगे वो। अभी अब शंकराचार्य के बारे में पूछ दिया जाए, शंकराचार्य जी मांग कर रहे हैं कि गो हत्या, जो काउ स्लॉटर्स कब बंद होगी उत्तर प्रदेश में, इसका जवाब नहीं है। गाय को माता मानते हैं ना, और वही शंकराचार्य जी कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनके जो है अब गो हत्या पर प्रतिबंध लगे, तब आपका सनातन, तब आपका हिंदू तो पता नहीं कहां चला जाता है। आपका विधायक, आप ही का विधायक है, नाम उनका क्या है, जो कह रहे थे कि पर डे उत्तर प्रदेश में 50,000 गायें कट रही हैं। तो आपके लोग ही आपके सवाल, आपके सरकार पे गैर हिंदू होने का सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, आई हैव अ क्वेश्चन, आपको तो उनका जवाब देना चाहिए। अशोक यादव जी, आई हैव अ मेजर क्वेश्चन बिकॉज यू आर द प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी इन उत्तर प्रदेश। आप प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, व्हाई इज इट दैट द डेटा वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट, द इकोनॉमिक डेटा दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूपी गवर्नमेंट इज वेरी कंफ्यूजिंग। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, टिल टुडे, बिकॉज योगी जी की गवर्नमेंट कब आई? 2017 में। 2017 से 2022 का डेटा और 2022 से लेकर के अभी तक का जो डेटा है, स्पेशली विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट, विद रिगार्ड टू एक्चुअल बिजनेसेस दैट केम अप, जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, बाकी सब चीजों का है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो डेटा आना चाहिए सर, इट इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप असेंबली में अच्छे तरीके से इसके ऊपर अगर आप कैंपेन करें तो सबका बहुत फायदा होगा। इनफैक्ट गवर्नमेंट का भी बहुत फायदा होगा। दे विल नो एग्जैक्टली वेयर दे स्टैंड। क्योंकि सर, बात कहना बड़ा आसान होता है कि 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 45 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। सर, ऐसा नहीं होता है। मेरा यह कहना है कि व्हाट इज द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ऑन द ग्राउंड, पैसा कितना आया है यूपी सरकार के कॉफर्स में, और यूपी सरकार के कॉफर्स में कहां से आएगा? वो तो सेंटर से ही आएगा ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल ट्रांसफर इट, क्योंकि आपके लिए आया है। तो वेयर इज दैट? आई एम नॉट एबल टू गेट दैट। हैव यू बीन एबल टू गेट दैट अशोक यादव जी? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो इकोनॉमी के डेटा है, या जो अर्थव्यवस्था की बात है, या जो डेवलपमेंट की बात है, इस पर लगातार हमारी पार्टी सवाल उठाती रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस तरह के मुद्दों को लाइक करते हैं, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन सरकार इसमें ऐसा गलतफहमी वाला आंकड़ा प्रस्तुत करती है जैसे लोगों को मतलब चीजें समझ में न आए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। लास्ट ईयर का जो बजट था उत्तर प्रदेश सरकार का, जो 9th बजट था, वो 8.65 लाख करोड़ का था। 8.65 लाख करोड़ का था बजट लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर के टोटल बजट का
जानते हैं कितना जारी हुआ? जैसे सरकार ने कहा बहुत बड़ा अब तक का ऐतिहासिक बजट, सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ा बजट, लेकिन टोटल जो बजट जारी हुआ सरकार से अन्य विभागों में 54.42%। अब बताइए, उन्होंने तालियां तो बटोर ली हो 8.65 लाख करोड़ का, इतना भारी भरकम बजट, और जारी कितना हुआ 54.42%। और ऐसे बजट जो 50% बजट लगभग आप खर्च कर पा रहे हो, तो आपसे विकास की हम क्या उम्मीद करेंगे? जो सरकार अपने बजट का, एनुअल बजट का, अनुपूरक बजट भी, सप्लीमेंट्री बजट भी उसमें शामिल था, वो सारा बजट मिलाकर के 54.42% अगर सरकार बजट खर्च कर पा रही है, जो सरकार इतनी नाकारी सरकार, इतनी नकम्मी सरकार, आप बताइए कि उस सरकार से डेवलपमेंट की बात अब क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं ना? और दूसरी बात, अभी 9.12 लाख करोड़ का इन्होंने इस बार बजट जारी किया। अब इसको भी बता रहे हैं कि अब तक का ऐतिहासिक बजट है। ठीक है, आपका बजट बहुत ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरदास का जो है। तो आप बहुत बड़ा बड़ा बजट बनाते हो। जी, करेक्ट है, जी, करेक्ट है। But then I think they're only following the center, because my problem, you see, I am a fan of Mr. Modi. My problem is that they have stopped releasing proper data. That's my problem. कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, they used to release data on a monthly basis, weekly basis, fortnightly basis, monthly basis. वो सारा बंद हो गया आज की तारीख में. So as a result of which we have to struggle for data. I mean, so finally everybody came out with just one solution कि let's go to the RBI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो डेटा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के, दैट इज द बेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको टैक्स देना पड़ता है, वहां पे इंपोर्ट टैक्स कितना आया और आपने जो एक्सपोर्ट किया उस पर आपने जीएसटी कितना दिया, सीधी साधी बात है, उससे जाकर के मालूम पड़ता है कि असल में हम लोग कहां खड़े हैं. नाउ वन गुड न्यूज प्रदीप जी, सुशील व्यास जी एंड डॉक्टर मलिक साहब, आंखें खोलिए बंधु, जरा इस तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए सर. सुएज मैक्स नाम है टैंकर का, इट इज कैरिंग 7,30,000 barrels of the Ural crude that we buy from the Russians, has already docked at an Indian port on the east coast, and it is right now offloading the crude oil, Russian crude oil being offloaded right now onto India to go to our refineries. The second one, the Aframax, with a cargo of 700,000 barrels, is seen arriving at Vadinar on India's west coast today. आज मतलब अगले 2 घंटे में आ जाएगा सर 7,30,000 बैरल उधर से और 7 लाख बैरल इधर से, which is absolutely fantastic, great news. So मेरा ये कहना है कि क्लियर कट मोदी सरकार की तरफ से जो हमें मालूम पड़ा है वो गया है, व्हाइट हाउस को गया है कि भैया हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, आपने इसके ऊपर अगर और सैंक्शन लगानी तो लगा दो, क्योंकि वी कांट डू विदाउट ऑयल. सर सिर्फ 1 महीने का ऑयल पड़ा है हमारे पास बस, सो वी नीड रशियन ऑयल. सुशील व्यास जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दिस? व्यास साहब, रशियन ऑयल इज ऑलरेडी कम, बोलिए सर. के अनुसार फैसले लेने पड़ते और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने में जब भारत की जनता की जो सुविधा के लिए और उनके जरूरत के मुताबिक फैसला जो तुरंत प्रभाव से लेना पड़ता है, फिर वो अमेरिका उससे किस तरह से रिएक्ट करेगा, कौन क्या रिएक्ट करेगा, हम भारत की जनता का सुख दुख दर्द हमारे लिए पहले है और उसी के चलते शायद रशिया का ये जो ऑयल टैंकर्स वगैरह है हमारे, अभी तो आपने 2 ही की गिनती गिनाई, इसके आगे कई जीरो और लग सकते हैं, लेकिन भारत को किसी भी चीज की कमी इस कठिन परिस्थिति में नहीं होने देना, यही एक जिम्मेदार नेतृत्व का कर्तव्य होता है और वो निर्वहन हो रहा है. I want to ask you व्यास जी, एक बहुत सीरियस एलिगेशन जो रोहित पवार जी ने लगाया 2023 में, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, and when he went to Davos and when he was coming back, it was the same aircraft अजित पवार जी के जो एक्सीडेंट वाले एयरक्राफ्ट थे. He says there was threat of attack first from Iran and then the aircraft went to the Iraq side and there was threat from there also to attack on the aircraft, and एकनाथ शिंदे जी उस एयरक्राफ्ट अंदर था. तो वही सेम कंपनी है VRS. तो किस प्रकार से, how do you see the charges of रोहित पवार? रोहित पवार जी
क्या चार्ज लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, और अगर उनको ये सारे संज्ञान में वो चीजें थी, नो डाउट ये बहुत गंभीर मुद्दा है और जांच का विषय है। लेकिन अगर ये दावोस मुख्यमंत्री रहते हुए जब एकनाथ राव जी शिंदे गए थे उस समय की वो बात कर रहे हैं, तो 2.5-3 साल उनको चुप रहने की कहां जरूरत थी। और जहां तक मेरी जानकारी है, आज वो वीएसआर कंपनी से संबंधित उनके जो 2 डायरेक्टर हैं, एक रोहित सिंह और दूसरे विवेक सिंह साहब, दोनों की 5 घंटे तक सीआईडी पुणे में जांच हुई है और उनकी जो कह रहे इंक्वायरी चल रही है। और तमाम जो सरकार की तरफ से जिस तरह की भी जांच हो सकती है, तमाम, चाहे वो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, वो बीबीआई जो उनका जो है वो उनकी तरह, डीजीसीए की तरह तमाम जांचें जितनी भी हो सकती है और किसी भी तरह शंका की जगह होनी नहीं चाहिए। और अगर ये दुर्घटना की जगह कोई मान लीजिए घटना है, घात-पात है, तो उसका भी निवारण होगा, क्योंकि जिसने भी इस पे शंका उपस्थित की है, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने कोशिश की है कि जितनी भी तरह की जांचें हो सकती है इस दुर्भाग्यपूर्ण जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी। आप जहां रहते हो चिक्कलवाड़ी के आसपास ग्रांट रोड में एकनाथ शिंदे जी ने ऐतिहासिक यानी से 25 साल से अटका हुआ प्रोजेक्ट उन्होंने चाबी दिला 265 रेसिडेंट्स को। इट इज समथिंग वर्थवाइल बिकॉज 25 साल से जो रखा हुआ प्रोजेक्ट को रीडेवलप, हाउ डू यू सी दैट? छोटा सा वर्णन। नहीं, मैंने आपसे कहा कि वो एक जिम्मेदार नेता है और जनता के सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े हैं, तो वो जानते हैं जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। इसीलिए वो चूंकि मुख्यमंत्री थे, आज उप मुख्यमंत्री हैं, और वो विभाग उस समय भी उनके पास था, नगर विकास, और आज भी उनके पास है। उसके चलते उन्होंने, और जिस चिखलवाड़ी ग्रांट रोड इलाके की आपने बात की, वो वहां के वो पालक मंत्री यानी गार्जियन मिनिस्टर भी है साउथ मुंबई के, तो वो तमाम जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसी के चलते वहां की जो अफेक्टेड लोग थे 255, आपने कहा इससे आगे भी जो बाकी जो लोग रह गए, चाहे वो वहां के हों या बीडीडी जाल वर्ली के हों, तमाम लोगों को वापस पुनर्स्थापित किया जाएगा और उनके हाथों में भी उनके नए घरों की चाबियां दी जाएगी। Right, so one other piece of news, UK has reversed a stand. By the way, UK ने पहले मना कर दिया था अमेरिका को कि भाई हम लोग जो हैं आपको अपनी एयर स्पेस और एयर बेसिस जो हैं हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे। Today that stand has been reversed. Mr. Keir Starmer, Prime Minister of UK and Great Britain, has said America is our friend and our bases are for their use. Spain, by the way, is the only NATO country which has said no. France is the other country which has also said no. Germany is the third country which has also said no. Well, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to all of you, talking to the both of you. अविरल मलिक साहब कहाँ चले गए पता नहीं, मतलब पहली बार हुआ है कि अविरल मलिक साहब को आवाज़ नहीं आ रही। क्यों नहीं आवाज़ आ रही मुझे मालूम नहीं है। जैसी बात हुई हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है, चले जाते हैं सर, वो क्या है मतलब। Anyway, India seems to be doing very well in the semi-finals. को मैं बड़ी अच्छी खबर शेयर करना चाहता हूं। भारत ने 254 रन का टारगेट दिया है इंग्लैंड। जी 254 एंड इंग्लैंड इज डाउन 19-1। इंग्लैंड 19 पे 1 है अभी। हाँ, so first wicket has gone down. Since both of you are cricket loving, that's why I'm just sharing with you. Sir, we are both sports loving. We are all sports loving. We love all sports. Thanks, Vyas. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much, Vyas. Thanks. Well, that's just about it for tonight's show. And since all of you are going to be watching the game, I would suggest keep watching the game. And I think India is going to win. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। Please do subscribe to the channel. I can subscribe to the fastest growing channel of the nation now. Nation Now. Fastest growing channel of the nation. The Real Nation People's Now. Channel. The Real People's Channel. और नेशन नाउ एक ही शब्द है साहब, 2 शब्द नहीं है, एक ही शब्द है। नेशन नाउ मतलब सब इकट्ठा, मतलब के राष्ट्र अभी। कहने का मतलब ये हुआ देश अभी, राष्ट्र अभी, वतन अभी, इसी वक्त, वतन अब। That's it. And from both Pradeep ji and myself and the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.